صدر کے خطاب کے دوران غیر مہذب احتجاج اور غیر مناسب زبان استعمال کرنے پر اسپیکر کا سخت ایکشن، جمشید دستی اور اقبال خان کی اسمبلی رکنیت حالیہ اجلاس تک معطل کر دی گئی۔ صدارتی خطاب کے دوران جمشید دستی اور اقبال خان نے تضحیک آمیز زبان استعمال کی، اسپیکر ڈائس کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی، دونوں کی رکنیت معطل کی جاتی ہے۔ اسپیکر کی رولنگ، ایاز صادق نے رکنیت معطلی کی اسمبلی ارکان سے توثیق بھی لی۔ اسپیکر کے فیصلے پر اپوزیشن ارکان بھڑک اٹھے، رولنگ کے بعد اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ Jamshed Ahmed Dasti and Mohammad Iqbal Khan MNAs used abusive language, approached the dais of the speaker in a threatening manner that should not have been approached, blowing whistles and trumpets which have never been blown in the parliament before. Now I put the question to the House that Jamshed Ahmed Dasti MNA and Mohammad Iqbal Khan MNA be suspended from the service of the Assembly for remainder of the session. All those in favor it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is... کل اسمبلی میں گالیاں نکالی گئیں، باجے بجائے گئے، اپوزیشن نے بدترین تاریخ رقم کی، پارلیمان کا تقدس پامال کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے آج مجبوراً ایک قدم اٹھایا، اس سے بہتری آئے گی۔ پوری دنیا میں کل بہت برا پیغام گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، ایسے رولز طے کیے جائیں جس میں ایک دوسرے کی تضحیک نہ کی جائے۔ بلاول بھٹو نے سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کو کامیاب ترین قرار دے دیا۔ جو ہمارا اپوزیشن کے دوست ہے ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پارلیمان کو اپنا کردار ادا کرے، پارلیمان میں اور پاکستان کے نمائندگی کرتے ہوئے ان کا یا ایشوز اٹھائے یا مسئلے حل کرنے کی کوشش کرے۔ پوری دنیا کو ایک بہت ہی برا، نہ صدر زرداری کے لیے نہ حکومت کے لیے اگر برا پیغام گیا، احتجاج کا الفاظ میں استعمال بھی نہیں کرنا چاہنا، اس لیے وہ احتجاج نہیں تھا۔ جمہوری طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کریں، لیکن جب آپ گالی گلوچ پہ اتر آئے، جب آپ سیٹیاں بجانے شروع کر دیں، تو یہ نہ پارلیمان کا طریقہ کار ہے، نہ کسی بھی جو میچور سوسائٹی ہوتا ہے ان سوسائٹیز میں اس قسم کی واقعہ نہیں۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھا شخص ملک دشمن بیانیاں چلا رہا ہے۔ ملک دشمن بیانیوں کو کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ پی ٹی آئی والے حکومت میں تھے تو ملک کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ سائفر معاملے پر اپوزیشن نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ یہ حکومت کو جو مرضی کہیں مگر پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنیں گے۔ 9 مئی کو ریاست پر حملہ کرنے والے کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی قومی اسمبلی میں دبنگ تقریر۔ وزیر اطلاعات کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا ارکان کا شور شرابہ جاری رہا۔ فاضل ممبر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی اپنی ہی پارٹی اس کی تردید کرتی ہے۔ میری ریکویسٹ ہوگی، آپ نے تنقید کرنی ہے آپ میری ذات پہ کیجئے، آپ نے تنقید کرنی ہے آپ میری پولیٹیکل پارٹی پہ کیجئے، آپ نے تنقید کرنی ہے میرے ایک ایک ممبر پہ کیجئے، پاکستان پہ تنقید نہیں اجازت دی جائے گی۔ سر انہوں نے پہلے بھی جناب اسپیکر، انہوں نے پہلے بھی ایک امریکی سازش کا بیانیہ کھڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں اور کہا کہ امریکی سازش کے نتیجے میں ہماری حکومت گرائی گئی ہے۔ اس کے بعد اسی سٹیٹمنٹ پر یہ واپس انہوں نے یو ٹرن لیا۔ ان کے لیڈر عمران خان کا بھی وتیرہ رہا ہے کہ فورن پالیسی سے کھیلنا ہے۔ قومی اسمبلی میں گرما گرمی اپوزیشن لیڈر اور اسپیکر کے درمیان نوک جھونک۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، اسپیکر صاحب آپ قانون اور آئین کے مطابق اسمبلی چلائیں، مجھے قانون نہ پڑھائیں، خود اس پر عمل کریں۔ اسپیکر ایاز صادق کا اپوزیشن لیڈر کو جواب۔ وزیر قانون اعظم نذیر تالڑ نے کہا، حکومت کو قانون سکھانے والے خود قانون توڑنے کے ماہر ہیں۔ صدر مملکت کے خطاب کے دوران شور شرابہ کر کے شرمناک حرکت کی گئی۔ جے یو آئی کے رکن اسمبلی نور عالم خان نے خاتون رکن سے حلف لینے پر اعتراض اٹھایا۔ کہا، اسپیکر صاحب آپ نے قانونی طور پر خاتون سے حلف لیا ہے۔ اسمبلی کی کارروائی کے دوران اپوزیشن ارکان مسلسل شور شرابہ اور نعرے بازی کرتے رہے۔
महंगाई के इश्यूज हैं, यहाँ पे नहीं, पेट्रोल point of बम और order, एक बिजली चीज पे बम बात के कीजिए ना, issues हैं। तकरीर ना ये कीजिए, this is a चीजें point take of up होनी order. चाहिए जनाब स्पीकर। This is a point यहाँ of पे- order, उस पे यहाँ बात पे कीजिए। लीगली आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। नहीं कर दिया, point of order पढ़ लें, what does a point of order? No, I am not going to be browbeated by you. This is wrong. जी लॉ मिनिस्टर साहब बात कीजिए। जनाब जी, स्पीकर, जी। मुझे तो हैरत इस बात की है कि कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है। यही वो बात है जो कि इनको गवारा नहीं है, इस बात को ये सुनने को तैयार नहीं है। शायद तरबियत ऐसी है जनाब स्पीकर। मुल्क के आईनी सरबराह के खिताब के दौरान जिस तरह के रवैये का मुजाहरा किया गया, वो ज़रूर तकलीफ दे और शर्मनाक है, उस वो पे मैं- शर्मनाक है। जी नूर आलम साहब। जनाब स्पीकर, जो गैर कानूनी काम होना था वो तो आपने कर दिया। एक पार्टी की वो हमारी मेंबर नहीं है और आपने उसको हल्फ दे दिया, मेंबर हमारी मैं नहीं पटेल है को और माइक दूंगा, आपने पटेल उसको को। हेल्प पटेल से क्या लेने तैयार हो दिया। ये बहुत अफसोस की बात है। आप सर, आपने ये गैर कानूनी काम किया है और इस पे ना हमें नोटिफाई किया है आपने, ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसका केस चल रहा है। अगर ऐसे ही हाल आप चलाएंगे सर, हम भी कोरम पॉइंट आउट करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कोरम बराबर नहीं होता। आप ठीक है, अक्सर कोरम या has तो been उस वक्त pointed हमने वो out, किया। count- वेलकम बैक। मलिका कोहसार मरी में 2 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है। दिलकश मौसम ने मलिका कोहसार का हुस्न मजीद निखार दिया। सयाह खूबसूरत मौसम एंजॉय करने मरी पहुंच गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी माल रोड पर एक सयाह फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ताज बुखारी, बताइएगा इस वक्त मौसम कैसा है? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मौजूद हूँ मैं मलका कोसार मरी माल रोड के ऊपर। अगर बात करूँ मौसम की तो आज दूसरे रोज़ है, शदीद बारिशों का जो सिलसिला है वक्फे से जारी है और शदीद तूफ़ानी हवाएं भी चल रही हैं। मौजूद है यहाँ पे एक फैमिली, उन्हीं से बात करते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहेंगे। बहुत ज़्यादा सर्दी है, टेम्परेचर है इस वक्त 13 और बहुत सर्द हवा है जो यह कर रही है, बहुत ठंडा कर रही है और खाने गर्मा गर्म बहुत मज़ेदार। शॉपिंग बहुत अच्छी है और जल्दी जल्दी आ जाएँ, फुल एंजॉय है। ये बर्फ़ से ज़्यादा मज़ेदार मौसम है और आपके लिए बिल्कुल मज़ेदार मौसम है। आप क्या कहेंगे? कपल है उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। यही जो इन्होंने कहा है। बहुत अच्छा मौसम है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, बारिश भी बहुत ज़्यादा है। पैसे कितने खर्च करवाए बाबा? बहुत ज़्यादा अभी होने भी है। और ये देख लीजिए, इनका कहना ये है कि मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़े का मौसम है। आप भी तशरीफ़ लाएं और एंजॉय करें मरी के इस खूबसूरत मौसम को। जी ताज, बहुत शुक्रिया आपका। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश से जाती सर्दी लौट आई है। PDMA ने सवात समेत दीगर अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। नुमाइंदा नियो हारून सिराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे अपडेट ले लेते हैं। हारून, बताएगा। जी बिल्कुल, स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश का नया सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जिसके बाद जाती सर्दी दोबारा लौट आई है और महकमे मौसमियात के मुताबिक स्वात की जो सियाती और पहाड़ी मकामात है वहाँ पे हल्की हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। PDMA के जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की मुतादिद जो ज़िला इंतज़ामिया है उनको खबरदार कर दिया गया है कि इस जो बारिश का नया स्पेल है यहाँ पे कुदरती आफात समेत लैंड स्लाइडिंग और दीगर वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं, जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर स्वात और दीगर एहलकारों को जो है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी जानिब सर्दी के हवाले से अगर बात की जाए तो जो गर्म मलबूसात लोगों ने रखे थे, सर्दी की शिद्दत दोबारा बढ़ जाने से लोगों ने दोबारा गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि हालिया बारिशों से जो सर्दी है वो दोबारा लौट आई है। इसी तरह अगर बारिश और बर्फबारी के हवाले से बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक स्वात में आइंदा 24 घंटों के लिए मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाके और सियाती मकामात में पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फबारी का इम्कान है। जी हारून, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, आर्मी चीफ से सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा की मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अफवाज की सलाहियत में इजाफे के लिए मुसलसल हिमायत का एआदा। आर्मी चीफ और सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा की ज़ेर सदारत पाक सऊदी दिफाई ताउन इजलास में ज़मीनी, फ़िज़ाई और समुद्री शोबों में ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत पाक सऊदी दिफाई ताउन के हवाले से अहम इजलास हुआ। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाले इजलास की दोनों आला हुकाम ने मुश्तरका सदारत की। इजलास में आलमी और इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और अफवाज पर उनके असरात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने सऊदी ज़मीनी अफवाज की सलाहियत में इजाफे के लिए पाकिस्तान आर्मी की मुसलसल हिमायत का अयादा किया, जबकि मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों के साथ इलाकाई अमन व सलामती के लिए गिरा कदर खिदमात की तारीफ की। अहम खबर शामिल करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गौरक की मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने गजा में हालात और मसाइब पर काबू पाने के लिए तुर्किया के फाल किरदार की तारीफ की। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान की कोशिश और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के किरदार को सराहा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज से जान लेते हैं। तारिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है ये इस वक्त जो है फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है मशरिक़ वस्ती की, उस तनाज़े में ये अहम बड़ी मुलाकात थी, जब सऊदी वज़ीर दिफा भी आए हुए हैं। तो आज जो है तुर्किया के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मतीन गौरक ने इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की है। इस मौके पर दोनों अतराफ से जो है गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया गया है और दोनों ममालिक के दरमियान अफवाज पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ को भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। इसके अलावा जो है उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने गजा में की सूरत हाल में तुर्किया की जो मदद है मुतासरीन के लिए उनके किरदार को सराहा है। और जबकि तुर्किया के जो आर्मी चीफ ने थे उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज की तारीफ किया है कि उन्होंने पाकिस्तान से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक बड़ा कलीदी और तारीखी किरदार अदा किया है। तो ये मुलाकात इस हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल रही और इसमें जो है बाकी मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के अलावा भी तबादला ख्याल किया गया। जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। मुआशी सूरत हाल और बुलंद शरह सूद के बायस बैंकों के डिपॉजिट्स रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 23 से मार्च 24 तक एक साल में बैंक डिपॉजिट्स में 4,742 अरब रुपए का इजाफा हुआ। एक माह में बैंक डिपॉजिट्स में 435 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। काशिफ, बताइएगा। देखिए जी, स्टेट बैंक की जानिब से आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं जिसमें बैंक डिपॉजिट में जो है वो एक बड़ा इजाफा देखने में आया है। एक साल के अंदर मार्च 23 से मार्च 24 तक 4,742 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। एक माह में जो बैंक डिपॉजिट्स हैं उनमें 435 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। सिर्फ मार्च के महीने में जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो 28,321 अरब रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। मार्च 2023 में बैंक डिपॉजिट 23,579 अरब रुपए थे। फरवरी 2024 में 27,886 अरब रुपए के बैंक डिपॉजिट थे। बुलंद शरह सूद होने की वजह से बैंकों को बेहतर मुनाफा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सरमायाकार जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो बैंकों में डिपॉजिट जमा करवा रहे हैं। जी ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका।